This is 1.3 problem in which you have to classify the substance into crystalline, amorphous or metallic, ionic, molecular, network सॉलिड्स में आपको क्लासिफाई करना है इन सबको. तो द फर्स्ट वन इज टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड. बिफोर we find out what is the type of, yes Pete, screen is visible? Any one of you can tell me the screen is visible to Yes, everyone? sir. Fine. So before we sort it out what type of solid are they, I would like to remind you that crystalline solids we classified into 4 types. One was ionic solids, in which the constituent particles were ions, and generally ionic solids are found by S and P block elements. Second category was of metallic solid that you can easily recognize. Either they will be the S block elements or D and F block elements. Molecular solid, a whole molecule will contribute in solid formation. And molecular solids were of 3 types. कौन कौन से थे वो आपके? नॉन पोलर, then polar, and third hydrogen bonded. And in network solid the constituent particles were atoms like diamond, graphite, like silicon carbide, like aluminium nitride. They all are network solid. The first one is tetra phosphorus decoxide, P4O10. Phosphorus is a non-metal, oxygen is also a non-metal. तो ये आपका आयनिक नहीं हो सकता. आयनिक होने के लिए one should be S block metal and another should be P block. बेटा अपना माइक को म्यूट कर ले बेटे. All of you mute your mics. So P4O10, it cannot be the network solid because the constant particle are atoms. It is a whole molecule. P4O10 metal भी नहीं है तो कौन सा हुआ आपका molecular solid. This is an example of molecular solid and it is a non-polar. So it is basically non-polar molecular solid P4O10. Next we have ammonium phosphate. Ammonium. You have identified one acidic and one basic radical exercise में आपने ये किए हुए हैं, in which you have to find out one acidic and one basic radical. So ammonium is NH4 positive and phosphate is PO4 3 negative. Clearly visible है, ions है. So कौन सा solid हो गया ये? This is an ionic solid. Now the third one is SiC. SiC सिलिकॉन कार्बाइड. अब आयनिक नहीं हो सकता क्योंकि दोनों मेटल नॉन मेटल है. सिलिकॉन भी और कार्बन भी दोनों नॉन मेटल्स. यू मस्ट हैव पीरियोडिक टेबल इन योर स्टडी रूम. दे बोथ आर नॉन मेटल. 40 ग्रुप के मेंबर से कार्बन सिलिकॉन, तो नॉन मेटल तो आयनिक नहीं हो सकता. मेटल नहीं है, ये बात पक्की है. मेटल को आप पहचानते हो. सिलिकॉन कार्बन दोनों नॉन मेटल है, ये भी नहीं है. मॉलिक्यूलर हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, लेकिन आपने इसको जो पढ़ा हुआ है वो आपने नेटवर्क सॉलिड में पढ़ा हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड में. तो दिस इज अ नेटवर्क सॉलिड. फोर्थ वन इज I2. I2 पूरा मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट है, नॉन पोलर है. सो इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड. पूरा पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है. P4 पूरा एक, आपको मालूम है फास्फोरस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ P4 इन नेचर. इस तरह से इन फॉर्म ऑफ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ये चीज रहती है. सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट एज S8. तो अगर P4 हो S8 हो, दोनों कैसे हैं? पूरा पूरा मॉलिक्यूल है. तो दे आर ऑल्सो नॉन पोलर एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नॉन मेटल्स हैं तो मेटेलिक नहीं हो सकता. आयंस का तो कोई दिख नहीं रहा, एक ही नॉन मेटल है.
या तो मॉलिक्यूलर होगा या नेटवर्क होगा। नेटवर्क में पड़ा नहीं है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है सॉलिड फॉर्मेशन। प्लास्टिक आपको बताया ये इट इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन, इट इज एन amorphous solid. Graphite you have studied, it is a network or covalent solid. Brass alloy है किस किस का, कॉपर एंड जिंक, तो बोथ आर मेटल्स, किस तरह का हो गया ये, मेटेलिक सॉलिड। रुबिडियम आपको मालूम है इट इज अ फर्स्ट ग्रुप मेंबर, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they all are metals, so this is a metallic solid. Lithium bromide, lithium bromide, lithium bromide has Li positive ion and Br negative ions. समझ में आ गया किस तरह का होगा ये, आयनिक सॉलिड हो गया। सिलिकॉन नॉन मेटल है, मेटेलिक नहीं हो सकता, आयंस नहीं है, आयनिक नहीं हो सकता, मॉलिक्यूलर नहीं है क्योंकि कोई मॉलिक्यूल नहीं है, सिंगल एलिमेंट है। तो जहाँ पे केवल एटम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या कहलाएगा आपका, नेटवर्क सॉलिड, या इसी को आप बोल देते हैं कोवेलेंट सॉलिड। तो अगर आपके पास इस समय एनसीईआरटी है तो उस पर इसी तरह से आप लेबलिंग कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कौन कौन से सॉलिड्स ये हैं। इसी में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि सर ये ऐसा क्यों। सर 11th वाला फिर से बता दीजिए। 11 में सिलिकॉन है, देखिए एक सिंगल एटम है तो आयनिक नहीं हो सकता, आयंस देंगे तो आयंस होने चाहिए, मेटेलिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नॉन मेटल है। अब मॉलिक्यूलर होने के लिए तो पूरा मॉलिक्यूल होना चाहिए ना, तो सिलिकॉन आप पढ़ेंगे नेटवर्क सॉलिड है, सिलिकॉन बाद में एमॉर्फस सिलिकॉन अगर लिखा होता तो कैसा होता, तो एमॉर्फस होता। आपने पढ़ा फोटोवोल्टिक सेल वाला, तो सिलिकॉन की अगर एमॉर्फस फॉर्म दी होती तब एमॉर्फस आप इसे बोलते। अभी ये आपका नेटवर्क सॉलिड में जो टेबल आपके पास है उसमें आप देख सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क सॉलिड। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। आप देख सकते हैं ये टेबल आपको कल बताया था, इस टेबल में जो सिलिकॉन है दैट फॉल्स इन द नेटवर्क सॉलिड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन इन फॉर्म ऑफ डायमंड और ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, लिखा नहीं है यहाँ पर, बट सिलिकॉन फॉल्स इन द नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, आपको कहीं ऊपर लिखा नहीं दिया होगा सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन को आप याद रखेंगे, इट इज अ नेटवर्क सॉलिड। यहाँ बच्चे जो गलती करते हैं वो ज्यादातर एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कर देते हैं। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में सोचते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, Al3 पॉजिटिव N3 नेगेटिव, सो इट मे बी एन आयनिक सॉलिड, नो इट इज अ नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। तो ये बात है आपसे। अब हम आपसे आज आगे की बात करेंगे जो कि हमारे पास है एक क्वेश्चन, ये भी हम कर लेते हैं 1.6 भी हम कर लेते हैं। देखिए they are asking classify the solids in the different categories based on the nature of intermolecular forces of attraction. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हमें इन सॉलिड्स को क्लासिफाई करना है, कैटेगराइज करना है। आपको बताया अगर मेटेलिक होगा तो वहां पे मेटेलिक बॉन्ड्स होंगे, आयनिक होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स होगा वहां नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे, मॉलिकुलर होगा तो वहां तीन तरह का हो सकता है। नॉन पोलर में दे विल हैव वीकेस्ट टाइप ऑफ डिस्पर्जन फोर्सेस और van der Waals forces. If there are polar molecular solids, they have dipole-dipole interactions. And third category is hydrogen bonded molecular solids. तो उनके बेस पर आपको यहाँ पर क्लासिफाई करना है कि ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। देखिए आप सब बच्चे, पहले आपके पास पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब के पॉजिटिव एंड सल्फेट मीन SO4 2 नेगेटिव, तो कैसा हो गया ये आपका आयनिक सॉलिड होगी। टिन यानी कि SN, नो डाउट इट फॉल्स इन P ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज अ मेटल,
तो जो टिन है आपका वो कैसा हो गया, मेटेलिक सॉलिड हो गया। बेंजीन फॉर्मूला होता है C6H6, पूरा मॉलिक्यूल है, तो कैसा हो गया ये मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। और ये नॉन पोलर होता है तो इसको नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल सकते हैं बेंजीन। यूरिया फॉर्मूला है यूरिया का NH2CONH2, आयंस नहीं है, एटम्स नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल है। और ये भी कैसा रहेगा, नॉन पोलर। अब आपसे पूछिए सर हमें कैसा पता चलेगा पोलर है या नॉन पोलर है, तो अगर आप नहीं कैटेगराइज कर पा रहे हैं तो आप सिंपली मॉलिक्यूलर सॉलिड लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। लेकिन अच्छा यही है कि पूरी बात बताई जाए कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये है आप, ठीक है। नेक्स्ट इज अमोनिया। अमोनिया में पता है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं अमोनिया में, तो भाई ये कैसा है H बॉन्डेड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है अमोनिया, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और नेक्स्ट आपके पास वाटर है, ये भी कैसा है, ये भी H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अमोनिया में कुछ लोग कहते हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हम बताते हैं H बॉन्डिंग बन सकती है, तो H बॉन्डेड भी ठीक है और पोलर वाला भी ठीक है, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है उसका स्पेशल क्लास ही H बॉन्डिंग है। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन H या किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे N, H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे O, H और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि F के बीच में ये हो सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका दोनों कैटेगरी में आ सकता है। ये आपका पोलर H बॉन्डिंग भी हो सकता है अमोनिया जो है आपका, और ये आपका H बॉन्डेड में भी हो सकता है, पोलर वाले में भी हो सकता है, दोनों जगह ठीक माना जाएगा। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का फॉर्म होता है ZnS, इसमें Zn2 पॉजिटिव और सल्फाइड 2 नेगेटिव, आयंस आ गए, एक मेटल एक नॉन मेटल, कैसा हो गया आयनिक सॉलिड हो गया। ग्रेफाइट आपने पढ़ा है, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, कार्बन के केवल एटम्स होंगे, और एटम का जो एटम किसी भी सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे दे फॉल इन नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड, एक ही बात। रुबिडियम आपको फिर से आ गया, ये आपका एस ब्लॉक का मेंबर है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन दे ऑल आर मेटल्स। सो रुबिडियम कैसा हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड हो गया। आर्गन ये आपका नॉन पोलर है, मेटल नहीं है ना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आपने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा है। सिलिकॉन कार्बाइड आपने पढ़ा है, नेटवर्क होगा या आपका कोवेलेंट सॉलिड होगा, एक ही बात होगी। इस तरह से ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं इनको हमने क्लासिफाई किया, इसके एक आध क्वेश्चन और हम देखते हैं अभी। सर जैसे सॉलिड, बेंजीन तो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, बेंजीन में तो वो कोवेलेंट क्यों नहीं है? अरे तो पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, P4 में भी तो ऐसी था, P4 में भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं तो, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, तो जब पूरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। तो बेंजीन इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए जो भी जरा सा भी डाउट आपको होता है ना, अच्छा पूछ रहे हैं आप, लेकिन ये अगर बेंजीन आपको उसमें नहीं दिया है, साइड बुक्स आप लोगों ने परचेज कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो आप गूगल से अपनी सर्च किया करिए, थोड़ी नॉलेज आपकी बढ़ेगी उससे। बेंजीन के अलावा एक एग्जाम्पल और आपको समझ में आएगा, टॉलिन है, वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। तो आज इसको और सर्च करके देखेंगे, पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको बात समझ में आएगी। तो ये आपका जो है रही बात। अब बात करेंगे हम 1.7 की। A solid is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state। अगर ये आयनिक होता ना तो molten state में ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ना तो ये कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट नॉर इन molten state and melts at extremely high। जब भी वर्ड extremely high टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट होगा तो या तो वो होगा आयनिक या होगा फिर वो नेटवर्क सॉलिड। तो आयनिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि molten स्टेट में कैसा है, इंसुलेटर है। कौन सा हुआ ये नेटवर्क सॉलिड हुआ। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, तो नेटवर्क और कोवेलेंट सॉलिड लाइक डायमंड। आपने देखा डायमंड तो कंडक्ट करेगा ही इलेक्ट्रिसिटी को, और मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है बहुत ज्यादा, और हार्डनेस तो आपको मालूम ही है, हार्डनेस नेचुरली अपनी सब्सटेंस से नीचे के। ये आपको मैंने कल कराया था, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट
क्योंकि आयंस बिकम फ्री टू मूव। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, मैलिएबल, डक्टाइल, तो आपको मालूम मेटेलिक सॉलिड्स आपकी रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें कल हमने डिस्कस की थी। आज जो चैप्टर है वो एक दूसरी तरफ मुड़ रहा है। ये एमॉर्फस क्रिस्टलाइन की बात खत्म हो गई। आज हम 3D फिगर्स की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है ये। जितना भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जितना भी आप मेंटल मॉडल्स बना सकते हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको आप इमेजिन कर सकते हैं, उतना ही ये चैप्टर अब आगे आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं तो खैर करा ही दूंगा आपको, लेकिन फिर भी मेंटल मॉडल जितने आपके क्लियर रहेंगे, मेंटल मॉडल का मतलब है आपको हवा में बनाने, आपको खुद ही सोचना है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे हो रहा है। आप को कोई और हेल्प नहीं कर पाएगा। फिगर्स वगैरह सब दिखाएंगे, सारी बातें रहेंगी, लेकिन जितने अच्छे से मेंटल मॉडल आप अपने माइंड में क्लियर करके बना पाएंगे बाकी चीजें मैं बताऊंगा, उतना आपको ये फिर इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप सब कर लेते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करें, क्रिस्टल लैट्रिसेस एंड यूनिट सेल्स। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, ये जो क्रिस्टल लैटिस की हम बात कर रहे हैं और यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, इसे आप अपना घर समझ लीजिए। जो यूनिट सेल है वो तो आपका एक कमरा है, ये जो आपको दिख रही है रेड कलर का, ये आपका एक यूनिट सेल है, यानी कि जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो तो आपकी यूनिट सेल होगी। और जो आपका पूरा घर है जिसमें डिफरेंट तरह के और रूम्स होंगे, वो मिला के कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस, या इसको हम क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो आप रूम का साइज देख रहे हैं ना वो क्यूब है, इसलिए इसको क्यूबिक लैटिस भी बोल दिया जाता है, या इसको क्रिस्टल लैटिस भी बोल दिया जाता है। तो जो यूनिट सेल है वो आपका रूम हो गया जिसमें आप बैठ के पढ़ रहे हो, और जो आपका पूरा घर है वो क्या हो गया? क्रिस्टल लैटिस हो गया, जिसमें कई सारे रूम्स हैं। यानी कि आपका पूरा घर तभी बनेगा जब कई सारे रूम्स आपस में अटैच्ड हो, तब आपका पूरा घर बन जाएगा। दैट हाउस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, एंड अ सिंगल रूम इन विच यू आर स्टडीइंग राइट नाउ एक्ट एज अ यूनिट सेल। अब अगर अपने रूम में आप जरा घूम करके देखेंगे तो आपके सामने जो वॉल है उसमें आप देखेंगे एक स्क्वायर बन रहा होगा, स्क्वायर टाइप का बन रहा होगा। अगर 10x10 की तो स्क्वायर होगा, 10x12 की तो स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन उसमें आपको सामने 4 कॉर्नर्स दिखाई पड़ रहे होंगे। एक अपने ऊपर देखेंगे लेफ्ट में, एक अपने ऊपर राइट में देखेंगे सामने वाली वॉल पर, 2 एक कॉर्नर अपने लेफ्ट वाले डाउनवर्ड अपने फ्लोर पर, और एक राइट साइड में अपने फ्लोर पर, यानी 4 कॉर्नर्स आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। और जो आपकी बैक है उस वाली वॉल पर भी 4 कॉर्नर्स आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जस्ट लाइक द फ्रंट वन। तो इस तरह से जो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, इट हैज टोटल 8 कॉर्नर। जैसे इस फिगर में भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर्स आपके रूम में फ्रंट के हो गए, और ये 1 2 3 4 हो गए आपके बैक वॉल के। 1 2 3 4, ये 4 आपके बैक वॉल के आ गए, और ये फ्रंट के आ गए 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना? तो ये इस तरह से ये जो 8 कॉर्नर्स हैं ये कुछ लाइन से भी मिले हुए देख सकते हैं आप। 1 5 को जोड़ रहा है, 5 6 से जुड़ा हुआ है, 6 2 से जुड़ा हुआ है, 1 2 से जुड़ा हुआ है, 1 3 से भी अटैच्ड है, 3 is joining with the 7, 7 is joining with the 8, 8 is joining with the 4, 4 is joining with the 3। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपकी एजेस कहलाएंगे। यानी कि अगर आप अपने सामने वाली वॉल पे काउंट करेंगे तो आपको 4 एजेस दिखाई पड़ रही होंगी, 2 ऊपर, सॉरी 1 ऊपर, 1 डाउन, 1 लेफ्ट, 1 राइट, है ना? जैसे 1 2 3 4, ऐसी 4 एजेस बैक साइड में जो आपके वॉल है उसमें होगी, 1 2 3 4, यानी कि 4 फ्रंट में एजेस है और 4 बैक में एजेस है। लेकिन साथ ही साथ फ्लोर पे देखो एक लाइन इन दोनों वॉल्स को अटैच कर रही है, ये आगे आपकी 9 और एक इधर से कर रही होगी 10
एक इधर से कर रही होगी 11 और ये 12, ऐसी 4 ऊपर होंगी आपके सिर के ऊपर, 1 2 3 4, यानी कि ये जो आप मैं बात कर रहा हूँ ये सब क्या कहलाते हैं, एजेस कहलाते हैं। जो इन कॉर्नर्स को, जो आपके रूम्स के कॉर्नर्स हैं उनको जो अटैच कर रही है लाइन, दे आर कॉल्ड एजेस। अब आप देखिए जो आप रूम जिसमें बैठे हुए हैं उसमें कितने कॉर्नर्स आ गए, टोटल 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं। एक बार फिर से काउंट कर लो आप जरा, कितनी लाइंस आपके रूम में आ रही हैं। एक आपके टॉप पर है, जो फ्रंट की वॉल है उसमें 4 एजेस दिख रही होंगी आपको, एक ऊपर, एक फ्लोर पे और 2 साइड से, लेफ्ट और एक राइट, 4 ही आ गई। ऐसी 4 पीछे होंगी वॉल पर, 8। ऐसे ही 2 जो आपकी एजेस हैं वो लेफ्ट में, लेफ्ट वाली जो वॉल है आपकी उसमें फ्लोर पर और आपके हेड पर, यानी कि लेफ्ट साइड में, वो आपकी हो गई 1 और 1 2, यानी कि 8 और 2 10, सॉरी हाँ 10। और ऐसी राइट साइड में हो गई आपकी एक ऊपर एज और एक नीचे। तो टोटल एजेस आपके रूम में कितनी हो गई, 12। और टोटल कॉर्नर्स आपके रूम में इस समय कितने हैं, 8। तो ये जो रूम है आपका, ये एक यूनिट सेल है जिसके अंदर 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं। ऐसा आपके यहाँ हर रूम में ही होगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं तो आप यहाँ बैठे हुए देखिए, आप यहाँ बैठे हुए अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो, और अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं तो ये कमरे में आप बैठे हुए फर्स्ट फ्लोर। अपने पैरों के नीचे जरा इमेजिन करिए, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे, बिल्कुल ऐसा ही रूम तो होगा जैसा ऊपर आपके पास है, जैसे नीचे बना होगा, बिल्कुल सेम रूम होगा। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हुए हैं तो अपने ऊपर अगर आपके रूम है तो इमेजिन करिए बिल्कुल ऐसा ही रूम आपके ऊपर छत पे भी होगा। अगर आप केवल ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं बना हुआ है, तो मत सोचिएगा, ऊपर तो आसमान रहेगा। तो लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपके हाउस का एक सिंगल रूम है, दैट एक्ट एज यूनिट सेल। और जब ऐसे कई सारे रूम्स, एक जैसे ये दिख रहा है रेड रेड करके दिखाया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, जैसे आप देख रहे हैं थर्ड ये आ गया, फोर्थ ये आ गया, फिफ्थ ये आ गया, सिक्स इसके ऊपर आ गया, सेवेंथ अगर इसको बोल दिया तो एट्थ यहाँ आ गया। इस समय ये 8 है, इस समय 8 रूम को इन्होंने जोड़ दिया है। और जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये 8 रूम मिलके क्या कहलाएंगे आपके, क्रिस्टल लैटिस या लैटिस कहलाएगा, है ना। स्पेस लैटिस ही बोल सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोले या स्पेस लैटिस बोले, दोनों बातें एक ही है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखिए बहुत शॉर्ट में, ये जो पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ, ये पॉइंट्स आपके सामने बने हुए हैं और आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं ये पोजीशंस को बता रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल हो सकते हैं, भाई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकता है। और जब इन लैटिस पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से अटैच करेंगे तो आपको एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी। देखिए एक स्क्वायर सा बन रहा है, अभी मान सकते हैं स्क्वायर ही मान सकते हैं, हालांकि साइज वेरी कर सकता है, रेक्टेंगल भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अभी आप स्क्वायर मान के चलें। तो जब आप इन लैटिस साइड्स को, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए ये लैटिस पॉइंट कहलाते हैं, लैटिस साइड कहलाती है, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड, इन पॉइंट्स को मीट कराएंगे, देन यू विल गेट अ रेगुलर ज्योमेट्री। ऐसा नहीं है कि साहब ये चल रहा हो और आपने इनको मिलाया तो बिल्कुल ऐसा बनना जैसे कि इंक में डुबो को चीटा छोड़ दिया हो और वो चीटा चलता जा रहा है और जो है वो अलग अलग ज्योमेट्री बनना जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्रिस्टल लैटिस में देयर विल बी अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड every point in a crystal lattice describe the position of a constant particle। एक पोजीशन ये होगी constant particle, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, और ये क्या कहलाएंगे आपके लैटिस साइड से लैटिस पॉइंट कहलाएंगे। यानी ये सब क्या है यहाँ पे, ये सब लैटिस पॉइंट है। ये लैटिस साइड्स बोले, लैटिस पॉइंट बोले, बात एक ही है। लैटिस साइड और लैटिस पॉइंट्स, ये दोनों बातें एक ही, ठीक है ना। तो जब आप इन लैटिस साइड्स को, लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे जैसे यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो आपको एक रेगुलर ज्योमेट्री मिलेगी यूनिट सेल के, स्पेस लैटिस के अंदर। तो स्पेस लैटिस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं।
देखिए, द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, यानी कि आपके घर के बारे में बात हो रही है। आपके घर में देखेंगे ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो मैंने आपको बताया जितने भी कॉर्नर पे ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब क्या बता रहे हैं आपको, लैटिस पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये क्रिस्टल साइड्स हैं, लैटिस साइड्स हैं, लैटिस पॉइंट हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे ये हो गया एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहा है, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन बता रहा है, ये पर्टिकुलर पोजीशन बता रहा है। और ये पार्टिकल मैं आपसे कई बार बता चुका हूँ, मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। और जब आप इनको मीट कराएंगे तो आपको उस लैटिस साइड की ज्योमेट्री मिली। जैसे ये देखिए, ये आपके सामने जो है एक यूनिट सेल है ना। इसे कितने कॉर्नर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसी जब कई सारी यूनिट्स से जुड़ती चली जाएंगी तो क्या बन जाएगा, स्पेस लैटिस। जो आप रूम में बैठे हुए ऐसे कई सारे रूम एडजॉइनिंग चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल लैटिस आपका बन जाएगा। और जो एक सिंगल रूम है वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। स्पेस लैटिस है क्या एक्चुअल में? स्पेस लैटिस हैज अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन। जब हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं ना, तो लैटिस पॉइंट का मतलब है वहां पे या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन। तो आपको अगर डिफाइन करना हो कि क्रिस्टल लैटिस में कैसा होता है तो आप ये लिख सकते हैं, a regular 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। आप जहाँ बैठे हो वो 3 डायमेंशनल स्पेस ही, अपना हाथ आगे पीछे लेफ्ट राइट चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो वो आप 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने हैंड को मूव कर रहे हो। Thus, a regular 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड a crystal lattice। यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, जैसा यहाँ आपको दिख रहा है, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका क्रिस्टल लैटिस। और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपको बता रहे हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है भाई? The following are the characteristics of a crystal lattice. Each point in a lattice is called lattice point or lattice side. Second, each point in a crystal lattice represents one constituent particle which may be an atom, a molecule or ion. Lattice points are joined by straight lines to bring out the geometry of the lattice. जब आप इन लैटिस पॉइंट को मीट करा देंगे तो एक रेगुलर ज्योमेट्री आपको मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास लैटिस, क्रिस्टल लैटिस की या स्पेस लैटिस की, एक ही बात है। अब देखिए एक बात और, एक मैथमेटिशियन थे ब्रेवाइस। तो देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। दीज आर कॉल्ड ब्रेवाइस लैटिसेस आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड देम। तो ये 14 तरह की आपकी ब्रेवाइस लैटिसेस हो सकती हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इस चैप्टर में जो मेनली हम बात करेंगे वो क्यूबिक लैटिस की बात करेंगे। जैसे ये दिख रहा है, मेनली जो इस चैप्टर में बात करेंगे किससे करेंगे, क्यूबिक लैटिस के बारे में बात करेंगे। देखिए क्यूब तो आप जानते ही हैं, ये आपके सामने एक क्यूब है, सारे आर्म्स बराबर रहेंगी इसकी। वो कितनी तरह की सकती है, 14 तरह की हो सकती है। मैं आपको एक लुक देता हूँ, देखिए 14 वाला क्या बोलना चाह रहे हैं, किस तरह की 14 लैटिसेस हो सकती है। देखिए ये 7 है, सामने आपको दिखाई पड़ रही है। ये आपके पास है क्यूबिक पहली वाली, दूसरी टेट्रागोनल है, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक है जो घर में यूपीएस अगर आपके पास है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है, रोमोहेड्रल है, ट्राइक्लिनिक है। इसके भी टाइप्स हो सकते हैं। और वो टाइप्स कैसे हैं आपके ये देख सकते हैं। क्यूबिक के 3 टाइप है जैसा आपको दिख रहे हैं। ये आपके पास टेट्रागोनल है, इसके 2 टाइप हो सकते हैं।
ये आपके पास ऑर्थोरोम्बिक है जिसके 4 टाइप हो सकते हैं, बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी एक आइडिया दे रहा था केवल। ये मोनोक्लिनिक है जिसके आपके 2 टाइप हो सकते हैं, तो 2 और 4 6 7 8 9 10 11 और भी पॉसिबल है, उनको कुल मिला के 14 हो जाएंगे। इतने दिए हुए नेक्स्ट पेज पे दिए हुए, देखिए 3 आ गया आपके 14, तो टोटल 14 ब्रेवाइस लैटिसेस पॉसिबल है। और वो किस बेसिस पर है, उनकी एज की लेंथ है, उनके बीच में क्या एंगल्स हैं, उनके बेसिस पर उनको डिफर किया गया है। फिलहाल उन सबसे हमारा कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो चीजें हमें येलो बार में दी गई, जैसा आपको ये दिख रहा है, ये पैरेट कलर का दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली ये येलो कलर का है। येलो कलर का जो पोर्शन है दैट इज गिवन फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, बट द क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन, दिस विल बी द नॉन एवेल्युएटिव पार्ट, इससे क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकते। फिलहाल इसके बारे में बात करूंगा बाद में। अभी एक बात आपको समझ में आई, जिस रूम में आप बैठे हुए वो यूनिट सेल है, और आपका जो पूरा घर है वो क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है, और उसके अंदर देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ऐसा नहीं है कोई दीवार आपकी टेढ़ी आ रही है, कोई इधर जा रही है, सब सीधी सीधी बनी हुई है। और जब आप इन लैटिस पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक रेगुलर ज्योमेट्री आपको मिलती है, जैसा आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब हम यूनिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट सेल है क्या? यूनिट सेल is the smallest portion of a crystal lattice, यानी कि आपका रूम, which when repeated in different direction generates the entire lattice, यानी कि वो smallest portion किसी भी क्रिस्टल लैटिस का, स्पेस लैटिस का, जो बार बार रिपीट होकर के कंप्लीट स्पेस लैटिस बनाए, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बनाए, वो कहलाएगा आपका यूनिट सेल। और इसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बारे में हमें पढ़ना ही आसान है। ये हमने जो है कोई यूनिट सेल लिया हुआ है, और इसके आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 6, ये 7 और ये 8 कॉर्नर्स इसके अंदर है। आप एजेस अगर काउंट करेंगे, ये एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, एज 5, एज 6, एज 7, एज 8, एज 9, एज 10, एज 11, एज 12। तो टोटल आपके जो रूम है उसमें आप काउंट करेंगे 12 एजेस होंगी और 8 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, ये आप करके देखेंगे आज दोबारा से। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या, देखिए आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसके सामने कोई ना कोई वॉल जरूर होगी, और उस वॉल में आप इसको इमेजिन करिए। देखिए एक तो ये हाइट बता रही है, एक जो एज है वो आपके रूम की हाइट बता रही है कि आपके रूम की हाइट कितनी है। 10 फीट पे लिंटर है, 12 फीट पे है, 14 फीट पे है, वो हाइट तय कर रही है एक एज। एक एज आपके सामने जो वॉल है वो आपके रूम की लंबाई बता रही है कि कितनी लंबाई है आपके रूम की, 15 फीट है, 10 फीट है, 20 फीट है। और तीसरी जो एज है वो आपके रूम की विड्थ बता रही है कि चौड़ाई कितनी है। यानी कि जो यूनिट सेल है उसमें सामने जो आपकी वॉल है, या जो सामने हमारी पिक्चर दिख रही है, इसमें 3 एजेस हैं। एक बता रही है हाइट कितनी है यूनिट सेल की, एक बता रही है लंबाई कितनी है यूनिट सेल की, और एक बता रही है विड्थ कितनी है यूनिट सेल की। आप अपने रूम का 3 तरह से नापोगे, विड्थ ने देखोगे। आपका रूम अगर 10 बाई 10 का है तो 10 बाई 10 का 10 फीट तो हो गई आपके रूम की हाइट, 10 फीट हो गई आपके रूम की गहराई, और 10 फीट हो गई आपके रूम की हाइट। अगर लिंटर 10 फीट पे है तो 12 पे होगा, तो 12 फीट होगा। तो जो भी है, फिलहाल आपको इतनी बात समझ में आ रही है कि ये सामने वाली वॉल पर आपको कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर देखिएगा अपना, लेफ्ट कॉर्नर में 3 एजेस जा रही होंगी, एक लंबाई बता रही है, एक हाइट बता रही है, और एक बता रही है विड्थ की, कितना चौड़ा रूम आपका है। अब इनको हमने नेम दे दिया ABC, किसी को कोई भी नेम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कुछ भी नेम दे दो, ABC दे दिया। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, A और C जो एजेस हैं इनके बीच में मिस क्या है, ABC में से क्या मिसिंग है, इसमें से केवल B। तो यहाँ वाला जो एंगल है जो A और C वाली एजेस के बीच में होगा वो कहलाएगा आपका बीटा। ये याद रखने का तरीका है, ये बदलेगा नहीं। A और C के बीच में हमेशा एंगल कौन सा लेंगे, बीटा लेना होगा। C और B के बीच में क्या मिसिंग है, A। तो जो अल्फा आप बनाते हो पहले A बनाओगे उसके बाद बनाओगे अल्फा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो C और B के बीच में क्या आएगा, A।
और ए और बी बाकी तो मालूम है आपको, तीन ही एंगल है, अल्फा बीटा गामा। बीटा कहाँ होगा, सी और ए के बीच में। अल्फा कहाँ होगा, सी और बी के बीच में। तो और ए और बी के बीच में क्या बचेगा, गामा। यही कैरेक्टरिस्टिक है। देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। A unit cell is characterized by its dimensions along the three edges A, B, C. These edges may or may not be mutually perpendicular. आपके घर में तो perpendicular ही है, तीनों तीनों 90 डिग्री पर है, क्योंकि आपका जो रूम है वो, ये जो एजेस है वो क्यूबाइड हो, क्यूब हो, लेकिन आपके तीनों परपेंडिकुलर ही होने हैं। आप देख भी सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना है तीनों एक दूसरे से। तो इट्स डायमेंशन along the three edges A, B, C. These edges may or not be mutually perpendicular. दूसरी बात, एंगल बिटवीन द एजेस अल्फा इसके बीच में रहेगा बिटवीन बी एंड सी, बीटा बिटवीन ए एंड सी, एंड गामा बिटवीन ए एंड बी। अब ये काम की बात आई, दस अ यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर। कौन कौन से, एक तो जो एंगल है तीन, अल्फा बीटा गामा, और दूसरा जो तीन जो डिफरेंट पैरामीटर है, कौन सा, हाइट का, लेंथ का, विड्थ का, यानी कि जो एजेस की लेंथ है। 6 पैरामीटर कौन से हो गए, एबीसी, अल्फा बीटा गामा। तो इस बेसिस पर यूनिट सेल को फर्दर कैरेक्टराइज हमने किया है। तो फिर से एक बार बात करते हैं, यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन ऑफ 3 एजेस ए बी सी, एंड दीज एजेस मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दूसरा क्या है, एंगल्स। एंगल्स क्या है इनके बीच में, है ना, जो आपका बी और सी वाली आर्म होगी उसमें कौन सा एंगल रहेगा आपका, अल्फा। बीटा किसके बीच में रहेगा, ए और सी, और गामा किसके बीच में रहेगा, ए और सी के बीच में रहेगा। तो ये जो मैंने आपसे आज बात की है, ये आपसे बात की मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, सॉरी केवल क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में बात की। पहली बार जो एग्जांपल दिया वो फिर दे रहा हूँ, 20 मिनट पहले जो दिया, आपका रूम यूनिट सेल, आपका घर स्पेस लैटिस। आपके रूम के अंदर 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये बार बार इसी पर अटक के रह गए। हाँ, क्योंकि जो पूरा आगे का चैप्टर है इसी पे डिपेंडेंट है, कि अगर हम ये मेंटल मॉडल बना पा रहे हैं अपने रूम के अंदर बैठ करके, कि हमारे यहाँ जो सामने वाली वॉल है उसकी 4 कॉर्नर्स सामने देख पा रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, हाँ अभी 4 कॉर्नर्स हैं, हमारे रूम के अंदर 12 एजेस हैं, तब ये बात अच्छी रहेगी। टाइम लगभग खत्म हो रहा है, कल इसी टाइम फिर से बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे। जितना चैप्टर आपका हुआ उसको एक बार रीडिंग और लेंगे, और जो क्वेश्चंस आप नहीं लगा पाए हैं अगर, तो उसको आप लगाइए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।